شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہزادی سلطانہ بادشاہ کی شادی کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ تو اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے، مگر جس روز وہ پیدا ہوئی تھی پورے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی پیاری بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ بار بار ملکہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور ننھی شہزادی کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ ملکہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ملکہ نے اس سے کہا بھی کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، مگر بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، شہزادی تو اتنی سی ہے، ہماری گود سے گرنا پڑے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی، رنگ شبابی اور بال سنہرے تھے۔ وہ روتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے چاروں طرف جل ترنگ بجنے لگی ہو۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں نہیں لگتا تھا۔ اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ پر ہی لگا رہتا تھا۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بڑے ناز و نم سے ہو رہی تھی۔ اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم کے کیڑوں سے حاصل کردہ ریشم سے اس کے لباس بناتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں پیمپروں کا رواج نہیں تھا، ورنہ ملکہ بیش قیمت پیمپر بھی لگوا کر رکھتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی جو ہر وقت اس کے آس پاس رہتی تھی۔ رات کو بستر پر ملکہ اس کے کونے پر سوتی تھی، بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ بادشاہ پر اور دوسری ملکہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی تھی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ پیار سے ہو رہی تھی، اور اس لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی۔ وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ کھانے کی کوئی چیز پسند نہ آئے تو اسے پھینک دیتی تھی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کرتی تھی، باپ سے چیخ کر بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اس کی چٹکی بھر لیا کرتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ صرف ملکہ کا کہنا ہی نہیں مانتی تھی، بادشاہ بھی اس سے کچھ کہتا تو وہ اس کی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو اس لیے نظر انداز کرتے رہے کہ وہ بچی تھی، اکلوتی تھی، اور شادی کے بہت سالوں بعد پیدا ہوئی تھی۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر اس نے کیک کو زمین پر گرا دیا تھا۔ اس تقریب میں وزیر، مشیر، عمرہ اپنی بیگمات کے ساتھ شامل تھے۔ شہزادی سلطانہ کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی۔ وہ محل سے اٹھ کر چلا گیا۔ خود ملکہ بھی سناٹے میں رہ گئی تھی۔ اس نے شہزادی کی سرزنش کی تو شہزادی اس سے بدزبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے مشروبوں کے پیالے زمین پر پھینک دیے اور روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس سلوک کا جگہ جگہ چرچا ہو گیا تھا۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور رعایا پرور ہے، مگر اس کی بیٹی کو دیکھو، نہایت چڑچڑی، بد دماغ، بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ باتیں پڑنے لگی تھی۔ وہ بہت غمزدہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ غلطی ان کی ہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ اپنی غلطی اگر تسلیم کرتی تو خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے آج تک خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چاپ رہنے لگا تھا۔ اگر ایسی بیٹی کسی اور کی بھی ہوتی تو وہ بیچارہ بھی چپ چاپ ہی رہتا۔ بادشاہ کو یوں چپ چپ دیکھ کر ایک روز اس کے وفادار اور عقل مند وزیر نے کہا، جہاں پناہ ایسے تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوئی تدبیر کرنا ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بادشاہ نے کہا، منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ کے ساتھ کوئی نوجوان شادی پر تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں
इन्हें खुद सर बना देती है। दूसरी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। बादशाह ने हामी भर ली कि वो ऐसा ही करेगा। बादशाह जब महल में पहुंचा तो शहजादी सुल्ताना का मूड खुशगवार था। बाप को देखकर वो दौड़कर इसके करीब आई और मोहब्बत से इसका हाथ पकड़ लिया। अब्बा हजूर, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। बादशाह ने अपना हाथ इससे छुड़ाया और कुछ दरश्त लहजे में बोला, शहजादी, आप महल के अदाब का ख्याल रखा कीजिए। हम इस सल्तनत के बादशाह हैं। ये ठीक है कि हम आपके बाप हैं, मगर तमीज भी कोई चीज होती है। ये कहकर बादशाह तेज तेज चलता हुआ बाहर निकल गया। शहजादी सुल्ताना का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। बादशाह की इस बात ने इसे सहमा दिया था, हालांकि इसे भी गुस्सा आ रहा था। इसने इस बात की शिकायत मलका से की तो मलका खुद इसके बुरे रवैये से ताई थी। बेरुखी से बोली, इतनी बड़ी हो गई हो, कुछ तो तमीज सीख लो। शहजादी सुल्ताना माँ को तो कुछ समझती नहीं थी। इसकी बात सुनकर गुस्से में पांव पटकते हुए चली गई। रात को बादशाह ने मलका से कहा, मलका, हम चाहते हैं कि अब शहजादी की शादी कर दीजिए। मलका उदासी से बोली, इससे कौन शादी करेगा? इसकी बदमिजाजी तो कस्बे के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मलका की बात बादशाह के दिल पर लगी थी और इसकी आंखें नम हो गई। वो खामोश हो गया। इन तमाम वाकयात के बाद शहजादी सुल्ताना अपने कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। शाम को वजीर बादशाह से मिलने आया। इसके आने की खबर सुनी तो बादशाह को याद आ गया कि वजीर ने शहजादी वाले मामले में कोई बात बताने का वादा किया था। इसने फौरन वजीर को तलब कर लिया और दोनों एक कमरे में बैठकर चुपके चुपके बातें करने लगे। अगले दिन बादशाह की हिदायत पर मलका ने शहजादी सुल्ताना को ये इतला दी कि उसकी शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने ये सुना तो फट पड़ी, हाँ हाँ, कर दीजिए मेरी शादी, मैं खुद अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद शादी की तकरीब हुई। शाम को शहजादी को इसके शोहर के साथ एक बग्गी में बिठाकर रवाना कर दिया गया। शादी बड़ी सादगी से हुई थी। ना ढोल ताशे बजे, ना आतिशबाजी की गई। शहजादी सुल्ताना इस दौरान इतने गुस्से में थी कि इसने ये भी नहीं पूछा कि इसकी शादी किससे हो रही है और ना ही इसने नजर भर कर अपने दुल्हा को देखा। और तो और रुखसती के वक्त वो बादशाह और मलका से लिपट कर रोई भी नहीं। इसकी ये वजह नहीं कि इसको डर था कि रोने से इसका मेकअप खराब हो जाएगा। इसका तो किसी ने बनाव सिंगार भी नहीं किया था, बल्कि इसलिए नहीं रोई कि इसको रोना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बादशाह और मलका से सख्त नाराज थी। बग्गी में बैठी तो इसने कुन आंखों से अपने शोहर की तरफ देखा। वो एक बहुत हसीन और जमील नौजवान था, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी बेरुखी थी। शादी के मौके पर तो चेहरे पर खुशी के आसार होते हैं, मगर वो तो संजीदा शक्ल बनाए बैठा था। शहजादी को जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ खौफ का एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद बग्गी रुकी। इनकी मंजिल आ गई थी। वो इस नौजवान का घर था। वो नौजवान नीचे उतर कर खड़ा हो गया। इसने जब देखा कि शहजादी उतरने का नाम ही नहीं ले रही तो सख्ती से बोला, शहजादी साहबा, अब उतर भी जाओ। यहाँ कनीजे नहीं है कि हाथ पकड़कर उतारेंगी। मैं तो एक लकड़हारा हूँ, पहले सारा काम खुद करता था, अब तुमसे करवाया करूंगा। मैंने जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठाई हैं, अब सुख का वक्त आ गया है। शहजादी तो हक्का बक्का रह गई कि इसकी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई थी। दुख और शर्मिंदगी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे रोता देखकर लकड़हारा नरम पड़ गया। मेरी तकलीफ का सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं, मुझे खुशी है। अच्छी बीवियां ऐसे ही होती हैं, गलत ना समझो। मैं तो इस बात पर रोई हूँ कि मेरी शादी एक लकड़हारे से कर दी गई है। अब्बा हजूर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शहजादी सुल्ताना ने बग्गी से नीचे उतरते हुए कहा। लकड़हारा हंसने लगा, तो तुम क्या समझ रही थी? तुम जैसी बदतमीज लड़की की शादी किसी शहजादे से होती? तुम मुझे मेरे मुंह पर बदतमीज कह रही हो? शहजादी ने चीख कर कहा, मैं तो मुंह पर कह रहा हूँ, लोग तो तुम्हें पीठ पीछे भी यही कहते हैं। वो तो बादशाह सलामत का हुक्म था कि मैं तुमसे शादी करूं, मैं मजबूर हो गया था, वरना तुम जैसी लड़की से कभी शादी की हामी ना भरता। इन्होंने अपनी मुसीबत मेरे गले डाल दी है, अब जिंदगी भर भुगतूंगा। लकड़हारे की ये तौहीन अमेज बातें सुनकर शहजादी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लकड़हारा इसके रोने से घबरा गया था, मगर इसने जाहिर नहीं होने दिया। शहजादी से बोला, तुमने अगर रोना धोना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ आऊंगा। शेर चीते दिन में तो नहीं, अलबत्ता रात को जरूर बाहर निकल आते हैं। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। शहजादी ने रोना बंद कर दिया। लकड़हारा इसे लेकर घर में दाखिल हुआ। घर काफी बड़ा था और इससे बड़ा इसका सहन था, मगर इसमें सामान बहुत मामूली था। शहजादी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। लकड़हारे ने बावर्ची खाने में जाकर खाने का इंतजाम किया। शहजादी को भूख लग रही थी, इसलिए इसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने के दौरान वो चुप ही बैठी रही थी। खाने के बाद बोली, मैं अपनी किस्मत पर शाकर हूँ, मगर अब्बा हुजूर और अम्मी हुजूर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
लकड़हारा तलखी से बोला, इनकी ज्यादती तो तुम्हें याद है। तुम क्या करती थी, भूल गई? तुमने इनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। तुम इकलौती थी, इसलिए वो तुमसे बहुत प्यार करते थे, तुम्हारी हर बात मानते थे और हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और तुमने इसका ये सिला दिया कि अपनी मनमानी करने लगी, और ये मनमानियां बढ़कर बदतमीजियों में तब्दील होगी। जिद तो छोटे बच्चे करते हैं और जिद करते बच्चे अच्छे भी लगते हैं, मगर तुम्हारे जैसी बड़ी लड़कियां जिद करते हुए कितनी वाहियात लगती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी लड़कियों को मरखने बैल के आगे डाल दूं, ताकि वो इनको खूब टकरे मारे और मजा चुका दे। ये सुनकर शहजादी फिर रोने लगी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारी बुरी बातों का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दो, ताकि हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। याद करो सालगिरह वाले दिन को, तुमने कितनी बदतमीजी की थी। लकड़हारे ने इसे याद दिलाया। शहजादी चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चला? ये बात तो हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है। इसी दिन हमारे मोहल्ले में दो औरतों की लड़ाई हो रही थी, तो उनमें से एक औरत ने दूसरी औरत को ये कहकर बदवा दी थी कि अल्लाह करे तेरी बच्ची शहजादी की तरह बदतमीज हो जाए। ये सुनकर शहजादी का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। लकड़हारे की बातें सुनकर इसको एहसास होने लगा था कि वाकया ही इसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज्यादती की थी। वो इससे इतनी मोहब्बत करते थे, मगर इसने हमेशा इस मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया था। अपनी ये बातें सोच सोच कर इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। लकड़हारे ने कहा, सुबह मुझे जल्दी उठना है। अब हम एक नहीं दो हो गए हैं। मुझे ज्यादा लकड़ियां काटना पड़ेंगी ताकि इतने पैसे मिलें कि हमारे घर के अखराजात ठीक से चलें। वैसे भी तुम बादशाह की बेटी हो, खर्च के मामले में तुम्हारा हाथ खुला होगा। और देखो हमारे घर में बहुत सी मुर्गियां भी हैं, इनके अंडे संभाल कर रखना। मोहल्ले वाले इन्हें खरीदने आए तो इन्हें फरोख्त कर देना। कमरे में दो ही आवाजें आ रही थी, एक लकड़हारे के बोलने की और दूसरी शहजादी की सिसकियों की। शहजादी को अपनी अम्मी और अब्बा शिद्दत से याद आ रहे थे। अगले रोज लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई। वो सोकर उठा तो शहजादी ने इसके लिए अंडे और पराठों का इंतजाम किया हुआ था। नाश्ता तुमने बनाया है? इसने हैरत से पूछा। नहीं, ये चीजें मैंने मोहल्ले के एक बच्चे से नान बाई की दुकान से मंगवाई थी। मुझे तो कुछ पकाना ही नहीं आता। ये कहते हुए शहजादी का शर्म से मुंह सुर्ख हो गया। वो सोच रही थी कि इसका लकड़हारा शोहर क्या सोचेगा कि इतनी बड़ी हो गई है और इसे खाना भी पकाना नहीं आता। लकड़हारा शाम को घर आया तो इसे सुबह से भी ज्यादा हैरत हुई। शहजादी कमर से दुपट्टा बांधे सहन में झाड़ू दे रही थी। मुर्गियां इसके आगे पीछे फिर रही थीं। घर का दरवाजा हालांकि खुला हुआ था, मगर वो शहजादी के पास से भागकर नहीं गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, लकड़हारे ने कहा। वो जल्दी से इसके पास आई। वो एक बदली हुई लड़की लग रही थी। इसके चेहरे पर अब वो वहशत और खुनगी भी नजर नहीं आ रही थी जो लकड़हारे ने कल देखी थी। लकड़हारे ने बहुत सारे सुर्ख सुर्ख बेर इसके हाथों पर रख दी। इन्हें मैंने जंगल से तुम्हारे लिए तोड़ा था। इसने खुश होकर इन्हें लिया और मजे से खाने लगी। ये तो बड़े मजे के हैं, इसने कहा। इसकी आवाज सुनकर लकड़हारे को बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं आसपास जल तरंग बज उठे हों। कल तो शहजादी की ऐसी आवाज थी कि इसे सुनकर लकड़हारे का दिल चाह रहा था कि कानों में उंगलियां ठोस ले। मैंने मोहल्ले के इसी लड़के से खाना मंगवाया है। मैं इसको इनाम में 2 सिक्के देती हूँ, वो भागकर मेरा काम कर देता है, शहजादी ने बताया। खाने के बाद लकड़हारे ने कहा, शहजादी मुझे खुशी है कि तुम बहुत बदल गई हो। वो बोली, आपकी बातें सुनकर मुझे एहसास हो गया है कि मैं किस कदर बदतमीज और बदअखलाक थी। मैंने अम्मी हजूर और अब्बा हजूर को बहुत दुख दिए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं इनसे मिलकर इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे इनसे मिलवाने ले चलें। लकड़हारा घबरा गया और कहा, कभी नहीं, तुम वहाँ जाओगी तो वहीं रह जाओगी। मैं क्या करूँगा? मेरी मुर्गियों को दाना कौन डालेगा? घर की सफाई कौन करेगा? शहजादी ने शर्माकर कहा, इनसे मिलकर वापस आ जाऊंगी। मेरा असल घर तो अब यही है। लकड़हारे ने ये बात सुनी तो इसका दिल चाहा कि मारे खुशी के एक जोर की चीख मारे, मगर इसने जब्त किया और धीरे से बोला, ठीक है, हम कल महल चलेंगे, मगर मैं लकड़ियां काटने जंगल नहीं गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसकी इस बात पर वो बोली, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत सारी अशरफियां जमा कर रखी हैं जो महल में मेरे कमरे में ही हैं, वो मैं लेती आऊंगी। अगले रोज वो महल पहुंच गए। इन्हें देखकर मलका ने जल्दी से शहजादी को गले लगा लिया और रोने लगी। बादशाह को भी इत्तला मिल गई थी, वो भी वहाँ आ गया। इसे देखकर शहजादी रोते हुए इससे लिपट गई। अब्बा हजूर मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया था और अपनी हरकतों से आपको बहुत दुख पहुँचाया था। मैं वादा करती हूँ कि अब आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। बादशाह की आंखें नम हो गई थी। इसने शहजादी को मोहब्बत से लपटा
हटा लिया और बोला, गलतियां बच्चे ही करते हैं, बड़ों का फर्ज होता है कि इन्हें माफ कर दें। बेटी, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि इस बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। फिर वो लकड़हारे की तरफ मुतवज्जा हुआ। हम तुम्हारे मशकूर हैं कि तुमने शहजादी को राय रास्त पर लाने में हमारी मदद की। लकड़हारा जो असल में शहजादा था, इसने हाथ बांधकर बादशाह को ताजीम दी और बोला, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे शहजादी जैसी बीवी मिली है। इन दोनों की बातों को शहजादी बहुत हैरत से सुन रही थी, जबकि मलका पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसकी हैरत भांपकर बादशाह ने कहा, बेटी, हमारे वजीर ने हमें ये सलाह दी कि शहजादा बाबर को एक लकड़हारा बनाकर इसकी शादी तुमसे कर दीजिए। शहजादा बाबर एक ज़हीन नौजवान है, इसकी बातों से मुतासर होकर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। हम बहुत खुश हैं। शहजादी की इस तब्दीली से हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगे थे। शहजादी ने इन शाही गुलामों और कनीजों से भी माफी मांगी जिनके साथ इसने कभी अच्छा सलूक नहीं किया था। इन लोगों में इसने अशरफियां भी तकसीम की। वो सब बहुत खुश हो गए। रात के खाने के बाद शहजादी ने शहजादा बाबर से कहा, मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। मलका ने हैरत से पूछा, बेटी, कहाँ जाने का कह रही हो? शहजादी ने शर्माते हुए कहा, अपने घर जहाँ हमारी मुर्गियाँ हैं और मोहल्ले का वो लड़का है जो छोटे भाइयों की तरह भाग भाग कर मेरे काम करता है। इसकी बात सुनकर बादशाह और मलका खिलखिलाकर हंस पड़े। बहुत दिनों बाद महल में इन दोनों की हंसी लोगों ने सुनी थी। खैर, बादशाह ने दोबारा तो इनको वहाँ नहीं भेजा। मुर्गियाँ इसने महल में ही मंगवा ली थी ताकि शहजादी खुश हो जाए। इस लड़के को जो बाजार से शहजादी के लिए चीजें खरीद कर लाता था, शहजादी ने बहुत से तोहफे भिजवा दिए थे। फिर कुछ दिन महल में गुजार कर शहजादा बाबर शहजादी सुल्ताना को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।